Okay, so the chapter in economics is exchange rate calculations. Since I am starting this batch with this chapter of economics, so I'll take 5 minutes in explaining the entire curriculum of economics. Economics at CFA program is not taught the way in which economics is taught in other programs. The purpose of economics is to act as a tool in forming capital market expectations. What is capital market expectations? When you invest in stocks or bonds, you have to forecast the expected return, the volatility. And this expected return and volatility depends upon the economy. What would be the GDP growth rate? What would be the inflation? What would be the interest rate? So we study economics so that we can forecast GDP growth rate, interest rate, inflation. And with the help of that, we will be able to forecast how equity markets will perform, how bond markets will perform. Understood? So level 1 में a certain base is built up, level 2 में further built up, and level 3 में ultimately we have capital market economics. So level 3 में if somebody checks the syllabus, he will find that economics नहीं है, पर है कहाँ पे? Capital market expectations. जो other tools है, you may be remembering that 4 tools है जो use करते हैं अपने for the purpose of analyzing equity fixed income. One is QM is a tool. Second is FSA, financial statement analysis, it is a tool. Third is economics, it's a tool. Fourth is corporate issuers, it's a tool. ये चारों tools एक तरह से. तो उनमें से बाकी तीनों tools level 3 में नहीं है. We don't have statistics, we don't have FSA, we don't have corporate issuers, but we have economics over there. ठीक है? When you listen to so much of economic news, आप television चालू करेंगे, newspaper खोलेंगे, most of the news is regarding economy. How is the economy performing? The fact that Trump has taken a U-turn. We were all born and brought up studying liberalization, privatization and क्या था पूरा 1982 में globalization in India, LPG. That is what every one of us have been studying and taught. International trade is good, capital flows should take place and all that. And Trump is turning the table and talking about a lot of tariffs and all that. So in that case, in the light of all this, there is so much talk इसका क्या effect होगा? Because अगर ये tariffs होगा तो शायद consumers have to pay higher prices. It will result in inflation. It will result in deceleration of economic growth. Economic growth world over will शायद come down. ठीक है? So what are the geopolitical implications of it? ये सारा का सारा जानना जरूरी और इन सब का ही तो बातचीत चलता है. So quite often you will find that you don't find those news interesting because the news don't get into your head. आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है पता नहीं थोड़ा ज़्यादा sophisticated है. The terminology used over there is such that you are not able to relate to it and therefore you give up. You remove that part of the news. आप देखते नहीं है वो सब news जो आता है, ठीक है? But if you had that inclination, काश यार ये वाला aspect समझ में आता, काश मैं अपना opinion form कर सकता, काश I become more presentable because at the higher end of the spectrum I have spoken number of times. इंडिया में जो सर्वे हुआ था CFA level 3 पास करके जो जॉब लगता है that lies between 12 lakhs to 60 lakhs, 12 to 60, that's the range. तो 60 के करीब will depend upon your articulation, your ability to be able to speak out. ठीक है कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, क्यों लगता है क्या होने वाला है, based on statistical data, based on this or that. ठीक है ना? So the excitement of studying economics over here should be that you are studying for your future to become more presentable. Those who can speak in economic terms, they are more presentable. Okay, they will not be given lower level work, they will be given higher level work to forecast. Those who can't, they will be given lower level work. Okay, economics का syllabus दो पार्ट में divided है. One part has gone into prerequisite. You must be aware of prerequisite. तो ये तीनों tools है ना, statistics उसमें prerequisite classes है. वैसे ही जो second है FSA उसमें prerequisite है, economics में भी prerequisite है. यानी कि जो अपने ज़्यादातर लोग जो अवेयर हैं डिमांड एंड सप्लाई ये सब पढ़ते थे ना, ओके, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सब, ये सारा का सारा प्री रिक्विजिट है, इन्होंने सिलेबस में डाला नहीं है. ठीक है, सिलेबस में इन्होंने केवल एक चैप्टर दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग को पता है, वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल फर्म्स कैसे डिसीजन लेते हैं, काम का है. क्यों? बिकॉज हम लोग जब इक्विटी एनालिस्ट बनेंगे तो इंडिविजुअल फर्म्स को पकड़ेंगे ना. वी वुड लाइक टू नो द यूनिट इकोनॉमिक्स, वी वुड लाइक टू नो द यूनिट इकोनॉमिक्स. ठीक है, कि एयरलाइन कंपनी है तो एयरलाइन कंपनी का इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है, व्हाट इज देयर वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज देयर फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज देयर रेवेन्यू मॉडल, व्हाट इज द प्राइसिंग पावर दैट दे हैव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दैट इज कवर्ड इन अ सिंगल चैप्टर कॉल्ड फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर. क्या चैप्टर है? फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, तो फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है, एक सिंगल चैप्टर
in microeconomics. Okay, we don't have demand, we don't have supply, we don't have cost, we don't have all those chapters, production and all that. नहीं, firm and market structure है. किसी को सपोज किसी का बैकग्राउंड ही नहीं है इकोनॉमिक्स में, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, आर्ट्स स्टूडेंट है, जो सीएफए प्रोग्राम ज्वाइन किया, बिकॉज आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स दैट पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड कैन ज्वाइन द सीएफए प्रोग्राम, बिकॉज अल्टीमेटली उनको फाइनेंस तो आना ही पड़ेगा, दे हैव टू मैनेज देयर ओन इन्वेस्टमेंट्स. क्या उनको डिमांड एंड सप्लाई ये सब पढ़ने का जरूरत पड़ेगा? मेरे ख्याल से नहीं. आई डोंट थिंक सो. फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर डायरेक्टली स्टार्ट करने से भी पूरा समझ में आएगा, सब्जेक्ट टू अ मेंटल ब्लॉक. इफ समबडी हैज क्रिएटेड अ मेंटल ब्लॉक, ओ मेरा तो इकोनॉमिक्स था नहीं ना, ओ मेरा तो ये है ना, ये जो ओ वाला पार्ट है ना, दिस कैन नॉट बी मैनेज्ड. बट इफ यू रिमूव दैट एंड थिंक कॉमन सेंसिकली, आपको पूरा समझ में आएगा. मेरे ख्याल से प्री रिक्विजिट डिमांड एंड सप्लाई ये सब पढ़ने नहीं जाना चाहिए. यू वांट टू, यू कैन, इज नो इशू, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज माय सिंसियर एडवाइस. लोगों का सिलेबस बाकी होगा, ओके, क्यूएम अभी तक नहीं किए, ये नहीं किए, और सोचेंगे नहीं हम डिमांड एंड सप्लाई करेंगे, तो ये कहाँ का टाइम एलोकेशन है? तब तो यू वोंट बिकम अ गुड फंड मैनेजर, बिकॉज आपको एसेट एलोकेशन भी नहीं कर पाएंगे. आपका सब कुछ हो गया दुनिया में, आप जाइए ना प्री रिक्विजिट में. अदरवाइज स्ट्रेट अवे कम टू दिस पार्ट एंड थिंक दैट योर कॉमन सेंस विल पुल अप द प्री रिक्विजिट. आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज दिस कि मैं बार बार इसको बताता रहूंगा एज इफ ये चैप्टर है कि प्री रिक्विजिट करे कि नहीं करे. दैट्स नॉट पॉसिबल. मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर्स है. एक है बिजनेस साइकिल्स, बूम रिसेशन. एक है फिस्कल पॉलिसी, यानी द पॉलिसीज व्हिच आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड थर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी, द पॉलिसीज व्हिच आर फ्रेम्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, केवल 3 चैप्टर्स है मैक्रो में. बिजनेस साइकिल, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी. बट सर जब मैक्रो का बात करते हैं तो अपने को तो इन्फ्लेशन पढ़ाना चाहिए, अपने को जीडीपी पढ़ाना चाहिए, जीडीपी का इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाना चाहिए. वो सब कहाँ है? वो सब प्री रिक्विजिट में है. क्या वो पढ़ने का दरकार है? एकदम भी नहीं. इनकेस तुम पढ़ लिया, यू आर रियली डिस्टॉर्टिंग योर टाइम. हाँ, मेरा सारा दुनिया भर का चीज हो गया तो पढ़ो ना, तो एकदम ट्रैक पे है, तुम्हारा पढ़ने का मन है तो. क्या मैं समझ जाऊंगा बिजनेस साइकिल, फिस्कल, मॉनेटरी, वो सब पढ़े बिना? एकदम यस, समझ जाओगे. ठीक है ना. नाउ देयर आर 3 चैप्टर्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. तो एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंटरनेशनल. माइक्रो में कितना चैप्टर है? 1. मैक्रो में कितना चैप्टर है? 3. और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर है. एक है ट्रेड, जो ट्रम्प कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड. सेकेंड है कैपिटल फ्लोज. कैपिटल फ्लोज सर, एफडीआई, एफपीआई का बात कीजिए. कैपिटल फ्लोज, ट्रेड तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. कैपिटल फ्लोज, जो कैपिटल फ्लोज जा रहे हैं, द फैक्ट दैट लास्ट 4 months 5 months में foreign institutional investors, or better called foreign portfolio investors, have pulled their money from emerging markets, especially India, and that's one of the reasons which has contributed to the fall in the Indian markets at the time of taking these live classes. If suppose somebody is studying this after 6 months, तो obviously उस समय का environment अलग है. मैं बात कर रहा हूँ अभी का, कि अभी जो environment है, Indian equity markets are really bleeding, and one of the reasons for the bleeding is the fact that FIIs have pulled their money. And why have they pulled their money? They pulled their money because dollar has become stronger, rupee has become weaker. So when they invest in India, they are investing in rupee, and rupee is depreciating. Plus interest rates over there are quite high, so they are getting a reasonable rate of return over there. ठीक है? तो capital flows is about that. Capital flows is about that. ठीक है? And this chapter is exchange rate calculations. What is it? Exchange rate calculations. तो 3 चैप्टर है इंटरनेशनल में. एक है ट्रेड, एक है कैपिटल फ्लोज और एक है एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस. तो यू सी समथिंग, मैं सबसे लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस. पीपल आस्किंग ओवर हियर, सर क्या वो समझ में आएगा? तो मैं फिर पढ़ा रहा क्यों? डिड आई से कल मैसेज में, केवल वो लोग ही अटेंड करना जिन लोगों को कोई नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, बाकी लोग अटेंड मत करना. किसी का फर्स्ट क्लास है, अगर आज CFA स्टार्ट भी नहीं किया, पहला क्लास है, तो भी 100/100 समझ में आएगा, 99.99 भी नहीं. ठीक है, 100/100 समझ में आएगा. कोई बेस, कोई बैकग्राउंड, कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस. दिस इज द चैप्टर. ठीक है, सिंस मैंने सिलेबस ये सब बोला तो बिकॉज ऑफ इट थोड़ा सा लिखा है तो पहले इन व्हाटएवर आई स्पोक. तो पहले चल रहा है जनरल डिस्कशन. जनरल डिस्कशन में पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक्स इन द CFA program is a tool to form CME, capital market expectations. Economics in the CFA program is a tool to form capital market expectations.
capital market expectations. This is a very technical, important word in portfolio management. Economics in the CFA program is a tool to form capital market expectations. तो capital market expectations का मतलब होता है ER, SD and correlation. So those who have done portfolio management, risk and return part 1 and part 2, they will 100% relate to it. किसका क्या बात कर रहे हैं? Expected return, standard deviation and correlation. ये सब जो forecast यूज हुआ था उस चैप्टर में, वो इकोनॉमिक्स के बिना नहीं आ सकता है. ठीक है ना? Point number 2. Curriculum. तो curriculum में we have 3 parts. Micro, macro, international. Micro में we have a single chapter. Firm and market structures. Firm and market structures. तो अपने जब इक्विटी पढ़ते हैं ना, when we study equity, तो इक्विटी में इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एक चैप्टर है, काफी जिनका किया हुआ है. इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में वी टेंड टू कैरी आउट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ एन इंडस्ट्री बाय माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस. ओके, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ एन इंडस्ट्री. तो यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट आवर मनी इन दैट इंडस्ट्री जहां पे कॉम्पिटिशन हाई है, या दैट इंडस्ट्री जहां पे कॉम्पिटिशन लो है. कैसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसपे कंपटीशन हाई है कि लो है? लो है, बिकॉज जहां पे कंपटीशन लो है वहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का स्कोप है. दोज हु आर इनकम्बेंट, जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, दे आर एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. तो इफ वी बाय देयर स्टॉक्स वी विल एंजॉय द सेम. अंडरस्टूड? वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू कि सर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काश कंपटीशन हाई होता, एफिशिएंसी होता, प्राइस कम चार्ज होता. कंज्यूमर वाला बात नहीं चल रहा है, इन्वेस्टर का बात चल रहा है. मैं अपना सेविंग्स अगर पुट करूंगा, आई वुड लाइक टू पुट इन कंपनीज फॉलोइंग इन इंडस्ट्री जहां पे कंपटीशन क्या है लो. तो वी वुड लाइक टू स्टडी सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपटीशन ना, कि वेदर मोनोपोली इंडस्ट्री है या ओलिगोपोली इंडस्ट्री है जैसा टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है, या वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है जहां पे बहुत सारे फर्म्स हैं बट दे आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. मेरा बढ़िया है, मेरा बढ़िया है, मेरा बढ़िया है, बट दे आर एसेंशियली सेलिंग द सेम प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसका थोड़ा आइडिया. तो इट इज नॉट टॉट दैट वे, द वे इन विच एक्सप्लेन 7 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, रट लो जाके उतार के आ जाओ, वो सब नौटंकीगिरी नहीं है. इट्स नॉट इन अ वेरी मैच्योर्ड मैनर कि प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, समझते हैं, ओके, क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सी जब रियल लाइफ पे काम आएगा. तो फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर इज दैट. मैक्रो इकोनॉमिक्स में से 3 चैप्टर्स है. एक है बिजनेस साइकिल्स. There is so much talk right now about the fact that the US economy may step into a recession. US economy may step into a recession because of Trumpian policies, the way Trump is doing the stuff. And at the same time, there is a talk about the fact that the US economy may face high levels of inflation because of import taxes that he has imposed on China, Canada and so on. Because अब जो ही माल आ रहा है उस पर तो import tax लग के cost ज़्यादा हो जा रहा है consumers के लिए. So a combination of recession and inflation, which is called stagflation. Economy is stagnating, GDP growth negative. At the same time, inflation is happening. It's called double whammy. कि दो तरफ से आपको गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, business cycles पे we learn all that. ठीक है, recession में क्या होता है, boom में क्या होता है. Where should we invest our money at the time of boom? Where should we invest our money at the time of recession? Do not forget the overarching objective. अपना study of economics is only for the purpose of investment. You forget that and you are going back to class 9 10 economics. क्या फायदा है? ठीक है ना. नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट हुआ इंडियन गवर्नमेंट का सिंस 2014 एंड स्पेशली एक्सेलरेटेड आफ्टर 2019 इनटू डिफेंस. ओके, इनटू डिफेंस. अगर कोई पकड़ लिया होता वो थ्रस्ट, और जिन्होंने पकड़ा दे हैव मेड मैसिव रिटर्न्स बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट डिफेंस पे फोकस होगा. अंडरस्टूड? That's one of the trait of fiscal policy कि you understand the priorities of the government, कि गवर्नमेंट का किस दिशा में प्रायोरिटीज है.
ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसीज आर ऑल अबाउट दैट. व्हाट इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डू रिगार्डिंग टैक्सेशन? ट्रम्प इज गोइंग टू कट टैक्सेस बिग टाइम लाइक ही डिड इन 2017-18. ही इज वंस अगेन गोइंग टू डू दैट, व्हिच मेक्स US more attractive for corporates. Okay, so he is doing things which are deregulatory such that you don't stifle. So the ease of doing business. Okay, that's really rising. Next, when I am discussing something Trump or something, am I making an opinion? क्या मैं यहाँ पे बैठा हूँ ट्रम्प के पॉलिसीज पे अग्री या डिसएग्री, अपने टॉपिक को चेंज कर दे, क्लास को आज कैंसिल करे और बोले चलो ट्रम्प का डिस्कशन होगा, तो सम पीपल इन द लाइव क्लासेस थिंक दैट ये होने वाला है कि एज अच्छा छोड़िए इसको, चलिए अपनी बात करते हैं. मैं अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता रहा हूँ, उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट डालने के लिए आई में टॉक अबाउट मोदी, आई में टॉक अबाउट ट्रम्प, दैट डज नॉट मीन दैट वहाँ लेट जाऊँगा मैं. ठीक है, तो आपका अगर मन कर रहा होगा चलिए ना ट्रम्प का डिस्कशन करते हैं, तो चलिए ना अपने मन में रखिए. ठीक है, डू इट विद GPT, डू इट विद सोशल मीडिया, देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स, लिसन टू देम एंड एंजॉय. नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी. तो शक्तिकांत दास recently his term was over. He could have been extended for another term. It was not done as the RBI governor. One reason that is being spoken about is that there was a friction between the North Bloc, as being the government, Sitaraman and all, and the South Bloc, that is RBI. Because this guy, Shaktikanta Das, was actually becoming very tight. And as a result of becoming tight, inflation control के चक्कर में liquidity in the system was getting dried up, and because of which growth was getting hurt. Okay, because inflation जो होता है ना वो दो साइड से होता है, एक डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड. कॉमन सेंस, इन्फ्लेशन कैन हैपन फ्रॉम द डिमांड साइड और सप्लाई साइड. इंडिया में काफी सारा इन्फ्लेशन जो हुआ वो सप्लाई साइड था, एंड सप्लाई साइड में आरबीआई कुछ कर नहीं पाएगा. डिमांड साइड में आरबीआई कर पाएगा कि डिमांड ज्यादा है तो क्या करे, चलो इंटरेस्ट रेट रेज कर दो, अपने आप ही हाउस होल्ड्स जो है वो कंज्यूम कम करेंगे. आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड साइड, सप्लाई साइड आरबीआई कैन नॉट इन्फ्लुएंस. So these government, Piyush Goyal, okay, the industry commerce minister, they were reiterating that RBI जो इतना strict inflation पे control कर रहा है ना, पर उसका कोई logic नहीं है, because inflation demand sided नहीं है, supply sided है. Whether he is correct or not correct, that's not the point. If somebody asks me, तो आपको लगता है क्या शक्तिकांत दास गलत था? मैं एक point बता रहा हूँ. तो monetary policy is all about that. जैसे Trump for example doesn't want interest rate to be raised, he wants interest rate to be cut. So what's going to happen in coming 6 months, 1 year, 1.5 years is that US will face a situation जहाँ पे recession होगा, GDP will fall, economic growth will slow down. At the same time inflation का pressures होगा. अब अगर recession है तो Federal Reserve should run an easy monetary policy, cut interest rate to pump prime the economy. But अगर inflation है तो Federal Reserve should run a tight monetary policy, hike interest rate. तो Federal Reserve करे क्या? ग्रोथ को देखते हुए उसको इजी मॉनेटरी पॉलिसी करना चाहिए, और इन्फ्लेशन को देखते हुए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. तो यहाँ पे ट्रम्प बोलेगा कट इंटरेस्ट रेट, पर फेडरल रिजर्व का इन्फ्लेशन भी मैंडेट है कंट्रोल करना, वो कर नहीं पाएगा. देयर विल लॉट ऑफ टॉक एंड द वे इन विच ट्रम्प गोज आफ्टर पीपल बाय टेकिंग नेम्स एंड ऑल दैट, सो दैट विल हैपन. ठीक है, in that time, unless and until he's having his person sitting at the helm of affairs, in which case you will find that inflation will shoot up by leaps and bounds in US. That's what many people are expecting. Those who are quite the Biden group and all that, they're just waiting तुम कर जो कर रहा है, एक बार देखते हैं क्या होगा. Next, international economics में we have 3 chapters. One chapter is international trade. No better time to study this chapter than right now जो times चल रहा है. It's all about tariffs and all that. Second is capital flows and FX markets. Forex markets is called FX markets. So yesterday Trump announced, the way he announces, that Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC is making $100 billion investment in US. So that investment is an FDI, foreign direct investment. Understood? So the same way he wants, one of the reasons of imposing so much of tariff is that he's trying to say that you all have to construct in US so that US का employment goes up. ठीक है, बाहर से कंस्ट्रक्ट करके यहाँ भेजोगे, हम लोग उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे. ठीक है, प्रॉब्लम इज फैक्ट्री सेटअप करने में कंट्री में टाइम लग जाता है, बीच में जो पेन होगा वो कैसे होगा. नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस. एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस. एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस. ठीक है, तो अपने इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. In about a week's time, this chapter will be shared with you
will not do it. Pre-recorded class will be shared with you. You will be provided intimation. तो we are going this chapter. ये कर लेंगे अपने, और यहाँ से ये वाला पार्ट आपसे शेयर हो जाएगा, ये कर लेंगे. Then we move after the remaining one. समझ गए? इन सीक्वेंस वाइज वैसे बोला जाता है कि इक्विटी इकोनॉमिक्स जो है, इट इज़ अ वेरी लाइट टॉपिक एट ऑल लेवल्स ऑफ द CFA प्रोग्राम, यानी ईजी पॉइंट ऑफ व्यू से. यस इट्स ईजी. आप कोई फालतू में उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगाएगा तो अलग बात है, बट अदरवाइज टाइम बचाना चाहिए यहाँ पे. इट्स ईजी, कॉमन सेंसिकल. ठीक है, ओके, चलिए. सो वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस. ओके, डिस्कस हो रहा है. लेट्स राइट डाउन. एक्सचेंज रेट is the price of one currency in terms of another. Exchange rate is what? It is the price of one currency in terms of another. Price of one USD is 87.20 INR. Price of one US dollar is 87.20 Indian rupee. So it's the price of US dollar in terms of INR. Correct? So what is exchange rate? The price of one currency in terms of another. तो शुरू से समझ जाओ, बाकी चीज़ों का जो दाम होता है ना, बाकी चीज़ों का दाम, मेरा ट्यूशन फीस अगर 40,000 रुपीज़ है, तो ट्यूशन फीस इज द थिंग जिसका बात कर रहे हैं, उसका दाम 40,000 रुपीज़ है. तो इस लैंग्वेज में कितने करेंसी इन्वॉल्व हुए? केवल एक रुपी. बट जब एक्सचेंज रेट का बात कर रहे हैं तो दो अलग अलग करेंसी है, उनमें से एक करेंसी का दाम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर. कोई सामान का दाम नहीं चल रहा है, एक करेंसी का ही दाम इन टर्म्स ऑफ अनदर. ठीक है, तो जिसका दाम बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ वन करेंसी, दैट्स कॉल्ड द बेस करेंसी. दैट्स कॉल्ड द बेस करेंसी. और उसका दाम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, तो जिसके टर्म्स में बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर, दिस इज कॉल्ड द प्राइस करेंसी. प्राइस करेंसी. तो जब मैंने बोला 1 USD इज इक्वल टू INR 87.20, when I said 1 USD equal to INR 87.20, तो आपने किसका दाम बोले? USD का. 1 USD equal to, और किस टर्म्स में बोले? INR में. तो USD is the base currency and INR is what? The price currency. ठीक है ना? Say 1 USD is equal to INR 87.20. सो यहाँ पे USD का दाम बोल रहे हैं सर, तो USD इज द बेस करेंसी, और आप बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ INR इज द प्राइस करेंसी. नो कंफ्यूजन एट ऑल, आई बिलीव. गोज विदाउट सेइंग दैट वी कुड हैव सेड 1 INR इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल निकाल दो, 87.20 का रेसिप्रोकल निकालो प्लीज. कैलसी, अगर $1 87 रुपया है तो एक रुपया कितना डॉलर है? 1 by 87.20, व्हाट इज इट? 0.01146 ओके अप्रॉक्स. USD इतना 1 INR, तो मैं इम्प्लाइज डेट लिख रहा हूं, इम्प्लाइज 1 INR इक्वल टू USD इतना. इसका कोई फॉर्मूला तो कोई बताएगा नहीं, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी हुआ. किसा अगर आपको उल्टा करना हुआ तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. सम थिंग्स आर लेफ्ट टू कॉमन सेंस. इफ यू अप्लाई फॉर्मूला ओवर देयर यू विल बी डिस्ट्रॉयड. तो कभी भी आपको अगर 1 USD इक्वल टू इतना INR, 1 INR इक्वल टू कितना USD निकालना है तो रेसिप्रोकल करना है. आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज ऑन स्टूपिड थिंग्स, इट इज बट ऑब्वियस. ठीक है, गंदा लग रहा होगा ये फिगर देख के तो वो अलग बात है, बिकॉज मेंटली वी आर अट्यून्ड टू नाइस फिगर्स. तो अगर मैं बोलता 1 GBP, अगर मैं बोलता 1 GBP इज इक्वल टू 2 कनेडियन डॉलर, 1 GBP इक्वल टू 2 कनेडियन डॉलर, तो 1 कनेडियन डॉलर इक्वल टू 0.5 GBP. 1 कनेडियन डॉलर इज इक्वल टू व्हाट? 0.5 GBP. तो ये सुंदर है बिकॉज फिगर्स वैसे थे, तो उससे तो मतलब ही नहीं है सुंदर है या गंदा है. ऑल दैट इज नॉट अ पॉइंट. तो हमने बात की एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर. पॉइंट नंबर 2. अब पहले डिस्कस कर लेते फिर दिखाते हैं. डबल चीज को संभालूंगा तो मेरा फ्लो खराब हो जाएगा. ओके, कोई भी करेंसी 3 लेटर्स से डिनोट होता है, जैसे USD US डॉलर, इंडियन रूपी INR, कनेडियन डॉलर CAD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड GBP, यूरो EUR,
जापानीज येन, JPY. दिस इज नॉट अ जनरल नॉलेज क्लास जिसमें यू नीड टू नो हर कंट्री का 3 लेटर्स क्या है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कोई जनरल नॉलेज क्लास नहीं चल रहा है. बट फिर भी सिंस वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स एंड डीलिंग विद करेंसीज, सम अवेयरनेस शुड बी देयर. तो कोई भी करेंसी को अपने 3 लेटर्स से डिनोट करते हैं. दैट इज द नॉर्मल प्रैक्टिस इन द मार्केट. अब वो 3 करेंसीज जब डिनोट करते हैं तो बाजार में जब आप एक्सचेंज रेट देखेंगे, व्हेन आई से बाजार, आई मीन टू से इफ यू गो टू द नेट एंड यू सर्च फॉर एक्सचेंज रेट एंड ऑल दैट, दे यू विल फाइंड वुड बी इन टर्म्स ऑफ 6 letters. 6 because exchange rate is the price of one currency in terms of another. So there has to be 2 currencies now, and 2 currencies will stand for how many letters? 6. A B C D E F. Correct? So let me be very generic. A B C D E F is the exchange rate given. What is the exchange rate given? A B C D E F. So A B C is one currency, D E F is the other currency. Whenever the exchange rate is given A B C D E F, तो बोलना चाह रहा है 1 ABC equal to how many DEF? क्या बोलना चाह रहा है? 1 ABC equal to how many DEF? सुनते समय आप लोग को कुछ तकलीफ हो रहा है बिकॉज ABC DEF के कारण. प्लीज ट्राई टू एक्सेप्ट इट. तो मैंने बोला ABC DEF इज इक्वल टू 0.4720. क्या बोला? 0.4720. इसका मतलब 1 ABC इक्वल टू 0.4720 DEF. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. एंड आई एम सेइंग दिस, दैट टाइम सम पीपल आर राइटिंग सम अदर स्टफ. ये लाइव क्लास में चलता रहता है तो कोई मतलब नहीं है बिकॉज मैं कुछ बात कर रहा हूँ, अगला का ध्यान कहीं और जा रहा है. मैं उसका नाम लेके उसका बारे बोलूंगा, आई थिंक दैट वुड बी डिस्टर्बिंग, तो इट विल बी इग्नोर्ड. तो ABC DEF अगर दिया हुआ 0.4720, किसका रेट है? ABC का. फिर से बोल रहा हूँ, GBP USD 1.3750. GBP USD 1.3750 किसका रेट है? GBP का. 1 GBP is 1.3750 USD. Is it okay? पहला वाला बेस करेंसी है. पहला वाला बेस करेंसी है. कभी कभी ऐसा हो सकता है GBP USD के बदले बोलेगा GBP डैश USD. GBP डैश, मैंने ऑब्लिक नहीं बोला, मैंने क्या बोला? GBP डैश USD. एक ही बात है, एक ही बात है. कभी कभी व्हाट डू वी कॉल इट, कोलन सेमी कोलन, डबल बिंदु को क्या बोलते हैं? डबल बिंदु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोलन. हाँ, तो अगर दिया हुआ है GBP कोलन USD, GBP कोलन USD, एक ही बात है. 1 GBP इक्वल टू हाउ मेनी USD. इज इट ओके? तो कोई डैश नहीं है या बीच में डैश है या बीच में कोलन है, डजंट मैटर, पहले वाले का दाम. बट इंट्यूटिवली मैथमेटिकली people are more comfortable this way. जब बोलते हैं ना the price of oranges is ₹40 per kg, ₹40 पर kg. ये जो पर है ना, PER पर kg, ये एक जनरल इंट्यूशन अपना कि अपने को वो अच्छा लगता है ना. तो अकॉर्डिंगली अपना हैबिट क्या होता है एक्सचेंज रेट को इस तरह लिखने का. कुछ भी कॉपी मत करना, अभी कुछ भी कॉपी मत करना, ठीक है ना. एक्सचेंज रेट को ऐसे लिखने का, क्या? USD / GBP. Now this is not the way in which quote is given, but this is the way it will be most probably given in the examination. So this doesn't fall into what I was talking about. ये है कि sir mathematically it's good enough that we say something per something. तो if you look at it that way, ये oblique है, तो ये बोलना चाह रहा है नीचे वाले का दाम. किसका दाम? नीचे वाले का दाम क्या है in terms of ऊपर वाला. Understood? तो ये 1 GBP is equal to how many USD? Here GBP is the base currency, USD is the price currency. Have you understood? Earlier what I was saying was this. I was saying GBP USD without any gap, or I was saying GBP USD, or I was saying GBP dash USD. Is it fine? वो तीनों जो ऊपर लिखे हुए हैं उनका मतलब था एक GBP का दाम ना. पर अगर तू मेरे को बोलेगा सर मैं कैसे लिखना चाहूंगा सम्स करते समय, मैं इसको ऑब्लिक में लिखना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू राइट इट दिस वे, जैसे नीचे लिखा हुआ. सम्स वाइज बेटर समझ में आएगा, मैथ्स वाइज यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. अंडरस्टूड? तो ये मैथमेटिकल कन्वीनियंस है. ऑब्लिक अगर दिया हुआ है तो नीचे वाला बेस करेंसी है. कौन सा? नीचे वाला बेस करेंसी है. ठीक है, अगर ऑब्लिक दिया हुआ है तो. बट अगर ऑब्लिक नहीं दिया हुआ है तो पहले वाला बेस करेंसी है. कौन सा? पहले वाला बेस करेंसी है. इज इट फाइन? इतना से अपना एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन हो जाएगा, इतने से जानने से. बट सर कुछ कोर में बोला है जो कि तुमको अच्छा लगेगा सुनने में भी, प्लस इट्स गुड नॉलेज टू हैव. बिलीव मी, एग्जाम में काम नहीं आएगा, बट कोर में बोला है तो अकॉर्डिंगली आई फील लाइक शेयरिंग द सेम बट नॉट डिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सेम. ये लोग बोल रहे हैं, ये मैं एक सर्टेन तरीके से बोल रहा हूं जिससे नेचुरली घुसे आप लोग के फुल स्क्रीन. अपने जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल हिस्ट्री, तो क्या लगता है
कि यूरोप जो है ना, वहाँ पे जो जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब है, वो मेजर पावर्स थे वर्ल्ड के, है ना। यूरोप वॉज द मेजर पावर। वो लोग ही तो इंडिया में आए एंड ऑल जगह गए, कॉलोनीज बनाए। यूरोप वॉज द मेजर पावर। तो फ्रेंच भी आ गए थे, दे वे ऑल्सो मेकिंग कॉलोनीज, यू आर अवेयर ऑफ इट। तो यूरोप वॉज द मेजर पावर, करेक्ट है। तो फ्रॉम द हिस्टोरिकल प्रीसीडेंस दे डिसाइडेड यूरो इज द बाप। किस सेंस में बाप सर? यूरोप तो इतना तकलीफ पे जा रहा है अभी, पीपल आर रेडिक्यूलिंग यूरोप। तो मैं पहली बात अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस। यूरो इज द बाप इन दैट सेंस। ये लोग डिसाइड किए जब भी यूरो का एक्सचेंज रेट किसी करेंसी के साथ होगा, क्या बोला मैंने, यूरो का एक्सचेंज रेट किसी करेंसी के साथ, तो यूरो को बेस करेंसी बनाएंगे। किसको बनाएंगे? यूरो को बेस करेंसी। दैट इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन दैट फॉरेक्स मार्केट फॉलोज। यानी यूरो और यूएसडी का रेट है, इट विल बी ईयूआर यूएसडी, इट वोंट बी यूएसडी ईयूआर। ठीक है, यूरो के साथ किसी का भी रेट है तो यूरो बाप बनेगा। सर क्या ये एग्जाम में ध्यान रखना जरूरी है? नो, समझ गए। बट इतना बेसिक लिखा हुआ अच्छा चीज तो, और कोर में लिखा हुआ, व्हाई शुडंट आई शेयर, आई होप यू डोंट माइंड माई शेयरिंग। तो यूरो बाप होता है, बाप मतलब बेस करेंसी। उसके बाद अपने को पता है कि फ्रांस और जर्मनी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए एकदम पुराने में, और यूके बाप बन गया था, बिकॉज यूके ही तो ज्यादा कॉलोनी बनाया, करेक्ट है। यूके तो यूएस को भी कॉलोनी बना लिया था, यू आर अवेयर ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट बाप इज जीबीपी, नेक्स्ट बाप इज जीबीपी। तो जब भी जीबीपी का एक्सचेंज रेट है किसी के साथ, तो जीबीपी शैल बी द बेस, जीबीपी शैल बी द बेस, ऑफ कोर्स आफ्टर यूरो। यानी यूरो और जीबीपी का करेंसी है तो कौन बाप हुआ? यूरो, समझ गए। नेक्स्ट बाप है जीबीपी। उसके बाद तो वी नो दैट अमेरिका बिकेम द बाप, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बाप कौन आ जाते हैं? यूएसडी। तो यूएसडी का एक्सचेंज रेट हुआ तो यूएसडी ही बेस करेंसी होगा, यूएसडी ही बेस करेंसी होगा, ऑफ कोर्स लिविंग द एक्सेप्शंस, कौन? यूरो और जीबीपी। बट नाउ ज्योग्राफिकली इमेजिन द वर्ल्ड मैप, प्लीज ज्योग्राफिकली इमेजिन द वर्ल्ड मैप। आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट ओवर हियर फॉर यू। ज्योग्राफिकली इमेजिन द वर्ल्ड मैप। यूरो उधर है। कल जो मैच था वो किसका मैच था? इंडिया ऑस्ट्रेलिया। कई बार पता नहीं इफ यू मैंने थिंक, बिकॉज लोगों को पता है द एटीट्यूड्स दैट ऑस्ट्रेलियंस हैव एंड यूज्ड टू हैड अ लॉट पहले, तो अब तो दे बिकॉज ऑफ आईपीएल एंड ऑल दैट पैसा के सामने सब झुकता है। बट अदरवाइज ऑस्ट्रेलियंस का एटीट्यूड थोड़ा सा अमेरिकन जैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस का एटीट्यूड थोड़ा सा अमेरिकन जैसा है, ऑल्दो चाइनीज उनको ठीक औकात दिखाए थे। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया इधर में एकदम कोने में, कहाँ यूएसए कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये लोग दोनों जो है उसके एक्सचेंज रेट कोटेशन में यूएसडी को बाप नहीं मानते। इसका मतलब है देयर इज एन एक्सचेंज रेट कोटेशन बिटवीन यूएसडी एंड एनजेडी। क्या बोला? यूएसडी एंड एनजेडी। एनजेडी इज द बेस करेंसी, यूएसडी एंड एयूडी, तो विच इज द बेस करेंसी? एयूडी। बट यूरो और जीबीपी है, यूएसडी का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट में बताया है द वे इन विच मेजर करेंसीज में डिसाइड होता है विच इज द बेस करेंसी, विच इज द बेस करेंसी। ये अपने एग्जाम में जरा सा भी काम नहीं आएगा। Stupidity is not tested by the CFA Institute at all, and they don't want stupidity to remain. But ये जो था लिखा हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा रीड करके, I was not aware of this, ठीक है। एंड ये मैं रिलेट कर पाया by the history of how things have societies have emerged. So I felt that I will remember this. Not that मेरे को ध्यान रखना है, पर ये मेरे को ऑटोमेटिकली याद रहेगा इस तरीके से। Therefore I shared the same with you, ठीक है। Maybe I will not dictate also. Why should I? ठीक है भाई, मेरा मन है सर तो कोर पढ़ ले एक बार, क्या इशू है, करेक्ट है। तो इस तरह से जो बहुत ही पेट्रियोटिक है उनको हर्ट हो रहा होगा, सर आपने इंडिया का बोला नहीं कि इंडिया कहाँ आते हैं। द थिंग इज दैट ये सब प्रेसिडेंट्स है अबाउट मेजर करेंसीज, अबाउट मेजर करेंसीज के बारे में ये रूल्स है। तो दिस इज नॉट अबाउट लेस मेजर करेंसीज लाइक आईएनआर, ठीक है ना। तो उनके बारे में रूल नहीं है नीचे तक कि उनमें कौन सा होता है वगैरह, क्या हायरार्की मेंटेन रहता है, ओके। सो दैट इज रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट। और एक चीज है जो मेरे को स्टूपिड लगता है और कोई काम नहीं आता है, फिर भी बताने का जरूरत है। एक्सचेंज रेट्स में होता है एक डायरेक्ट कोट और एक इनडायरेक्ट कोट, हर जगह लिखा रहता है, कोई काम का नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट मीन्स वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी होम करेंसी, वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी होम करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी का दाम, तो प्लीज आई एम सर्कलिंग दिस, ये जो है बोर्ड पे सारा ही है, इसमें दिस कोटेशन, ये जो ये नहीं सारा ही सब सेम कोटेशन तो है। दिस इज अ डायरेक्ट कोट फॉर अमेरिकन और डायरेक्ट कोट फॉर ब्रिटिश। सोच के मैंने बोला डायरेक्ट कोट माने वन फॉरेन करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी होम करेंसी, माने फॉरेन करेंसी बेस होगा। फॉरेन करेंसी बेस है तो वो डायरेक्ट कोट है। तो मैं बोल रहा हूं दिस इज अ डायरेक्ट कोट फॉर अमेरिकन और डायरेक्ट कोट फॉर ब्रिटिश। दिस इज अ डायरेक्ट कोट फॉर अमेरिकन,
बिकॉज क्या बोले डायरेक्ट कोट का मतलब, यू डिडंट अंडरस्टैंड. डायरेक्ट कोट मीन्स वन फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मेनी होम करेंसी. डायरेक्ट कोट में बेस करेंसी कौन सा होगा? फॉरेन. तो अमेरिकन के लिए फॉरेन करेंसी कौन सा हुआ? अरे अमेरिकन के लिए यहाँ बोर्ड पे कौन सा फॉरेन करेंसी हुआ? जीईपी. अमेरिकन के लिए यूएसडी तो होम करेंसी है, फॉरेन करेंसी जीईपी हुआ. तो अगर मैं जीबीपी का दाम बोल रहा हूँ इक्वल टू हाउ मेनी यूएसडी, दैट्स अ डायरेक्ट कोट फॉर यूएस, दैट्स अ डायरेक्ट कोट फॉर यूएस, बट इट्स अ इनडायरेक्ट कोट फॉर ब्रिटिश. बिकॉज ब्रिटिश लोग के लिए तो हमारा ही जीपी, वन जीबीपी, वन होम करेंसी इक्वल टू हाउ मेनी फॉरेन करेंसी. ठीक है, कोई काम नहीं आता वैसे ही. जैसे इंडिया में भी जो कोटेशन चलता है वो डायरेक्ट कोट चलता है. आई सेड वन यूएसडी इक्वल टू INR 87.2, तो इंडियंस के लिए तो डायरेक्ट कोट है, बिकॉज मैं फॉरेन करेंसी का नाम बोल रहा हूँ. वन यूएसडी इक्वल टू कितना रुपया, वन जीबीपी इक्वल टू कितना रुपया, वन यूरो इक्वल टू कितना रुपया, वन येन इक्वल टू कितना रुपया. जब भी अपने फॉरेन करेंसी का दाम बोल रहे हैं ना कितना रुपया, दैट इज अ डायरेक्ट कोट, दैट इज अ डायरेक्ट कोट. और वो नेचुरल भी है. क्यों? बिकॉज यूजुअली क्या करेगा इंडियंस, तो घूमने जा रहा है तो इन दैट केस डॉलर बाई करेगा. तो दैट में डॉलर ही तो हमारे लिए कमोडिटी हो गया ना. हम रुपये को कमोडिटी थोड़ी मान रहे, रुपया तो हमारे पास है. देखा जाए तो हम सामान खरीदने जा रहे हैं ना, तो हम डॉलर खरीदेंगे, हम पाउंड खरीदेंगे. आई गेट माय पॉइंट? तो इसलिए नेचुरल है कि फॉरेन करेंसी का ही दाम कोट होना चाहिए. थिंक अबाउट इट. क्या तुमको फिट हुआ जो मैंने बोला अभी? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली डायरेक्ट कोट ही तो नेचुरल है कि सर हम लोग वही तो खरीदने जाएंगे, डॉलर या पाउंड या जो भी है, तो अकॉर्डिंगली उसका दाम कोटेड रहे तो बेटर है. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस इन इंडिया. वी कोट डायरेक्ट रेट्स. डायरेक्ट कोट मींस फॉरेन करेंसी का दाम कोट करते हैं इंडियन रुपी के सामने. गॉट इट? ओके. सो एक बार ये एक्सचेंज रेट कोटेशन स्टाइल्स लिख रहे हैं अपने, तो लेट अस राइट डाउन. पॉइंट नंबर 2, एक्सचेंज रेट कोटेशंस. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट बुलेट, ऑल करेंसीज are expressed via 3 letters dash EUR, GBP, USD, JPY, INR, etc. All currencies are expressed via 3 letters. Next bullet. Standard quotes are like these. Standard quotes are like these. GBP USD or GBP is to USD और GBP डैश USD. तो एक तो विदाउट गैप लिखा, एक कोलन के बाद लिखा और एक डैश के साथ लिखा. ऑल दिस implies, हिंदी में लिखा रहा हूं, ओपन इंवर्टेड कॉमा, पहला वाला करेंसी is the base currency. पहला वाला करेंसी is the base currency. Next line. So 1 GBP equal to how many USD? Para change. However, comma, while solving questions, comma, it is preferred to write exchange rates with an oblique sign. Exchange rate with an oblique sign. Full stop. USD oblique GBP to be read as
number of USD to be read as number of USD per GBP. ये पर के कारण आया बिकॉज मैं हैबिट ही है ₹40 पर केजी ऑरेंजेस का दाम, तो इस कारण से ऑब्लिक बेटर लगता है। हाँ ठीक है, ये बता रहा है नंबर ऑफ USD पर GBP, ठीक है, फुल स्टॉप। सो whenever exchange rate is quoted with an oblique sign, comma, open inverted comma, नीचे वाला करेंसी is the बेस करेंसी, नीचे वाला करेंसी इज द बेस करेंसी। तो ऑब्लिक में पहले वाला बाद वाला मत बोलना, ऑब्लिक में बात हो रहा है नीचे वाला ऊपर वाला, और जो पहले चल रहा था वो वाला जो साइड साइड था वो था पहले वाला बाद वाला, ऑब्लिक में नीचे वाला ऊपर वाला, ठीक है ना। ओके, पॉइंट नंबर 3, ओके, डिस्कस कर रहा हूँ फुल स्क्रीन। तो बुक में तो अब लिखा हुआ नहीं है, बट मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरे को फील हुआ ये जो अपने इतना सीखे अभी कि बेस करेंसी ये होता है, क्या फ़ायदा है इसका, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट दिस तो तुम कुछ ही नहीं कर पाएगा। अभी कॉपी नहीं करना है, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे अगर आप कॉपी करोगे तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट प्ले नहीं होगा, इसलिए डू नॉट कॉपी, ठीक है। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट प्ले करने का बात करें, सपोज एक्सचेंज रेट है USD ऑब्लिक AUD 0.7650, ठीक है ना, एंड आपको 70,000 USD सेल करना है, बेचो, बोलो कितना AUD आएगा। केवल दो ही फिगर्स है बोर्ड पे, एक है 70,000, एक है 0.7650। आदमी उनके साथ क्या कर सकता है, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, या डिवाइड करेगा, या ऐड करेगा, या माइनस करेगा। आई एम श्योर ऐड और माइनस तो फीलिंग आएगा नहीं, तो द ओनली वे यू कैन डू रॉन्ग इज ओनली वन वे, कि या तो ये दोनों डिवाइड होने वाला है या मल्टीप्लाई होने वाला है। यस प्लीज, 70,000 USD है, उसके साथ इंटू 0.7650 करे या डिवाइड बाय 0.7650 करे। 70,000 USD में बेचने गया बैंक को, बैंक ये रेट कोट कर रहा है, तो बैंक वाला मेरे को ऑस्ट्रेलियन डॉलर देगा ना, मैं 70,000 US डॉलर दूंगा तो बैंक वाला मेरे को देगा। से अमेरिकन पर्सन है और ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं, तो इन दैट केस पॉकेट से निकाला 70,000, बैंक को दिया, भाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे जिससे हम घूमें। यस प्लीज, तो 70,000 इंटू 0.7650 या 70,000 डिवाइड बाय 0.7650, इट विल बी डिवाइड। रीजन है यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में जाते हैं, नीचे वाले का दाम है, किसका दाम है, ऑब्लिक के बाद तो नीचे वाले का दाम है, यानी यूनिटरी मेथड क्लास 5-6 में चलेंगे। 1 AUD इक्वल टू इतना, तो 2 AUD इक्वल टू 2 इंटू इतना, 3 AUD इक्वल टू 3 इंटू इतना, 4 AUD इक्वल टू 4 इंटू इतना, 5 AUD इक्वल टू 5 इंटू इतना। अगर 70,000 AUD होता तो 70,000 इंटू इतना, पर क्या 70,000 AUD है, नहीं, क्या है 70,000 USD। हाउ कैन यू अप्लाई यूनिटरी मेथड। सो ये तो दाम ही USD का नहीं है, दाम तो AUD का है। मैथ्स का बात हो रहा है, मैथ्स या फॉरेक्स का बात नहीं हो रहा है। अगर 70,000 AUD बेचते तो 1 AUD बेचेंगे तो 0.7650 मिलेगा, 5 AUD बेचेंगे तो 5 इंटू 0.7650 मिलेगा, 70,000 बेचेगा 70,000 इंटू 0.7650 मिलेगा, पर ये तो USD है। तो कोई बोलेगा सर हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, जो करेंसी देगा हम उसको पहले नीचे ले आएंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इशू एट ऑल। और द पॉइंट इज दैट आप क्यों कन्वीनियंस सर्च कर रहे हो, द थिंग इज दैट जो अमाउंट दिया हुआ है अगर वो बेस करेंसी का है तो यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई, पर जो अमाउंट दिया हुआ है वो प्राइस करेंसी का है तो क्या होगा, डिवाइड। ऐसा कोई LOS नहीं है। एक्सप्लेन, आप एक्सचेंज रेट दिया हुआ है तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, बिकॉज ये लोग मानते हैं ये हो गया धरती के अंदर घुसना। इफ दे हैव टू टीच दैट, दे बिलीव दैट दे शुड शट डाउन द CFA प्रोग्राम। देयर इज नो LOS ऑन हाउ डू यू कन्वर्ट, देयर इज नो LOS, एंड दिस इज इम्प्लिसिट, अंडरस्टूड। तो क्यों बेस करेंसी इंपॉर्टेंट, उसका पहले तो ये समझ में आया। तुम कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, तुम नहीं समझ रहे, तो सारा का सारा खेला ही बेस करेंसी का है। कितना जो अमाउंट दिया हुआ है क्या वो बेस करेंसी का है तो मल्टीप्लाई, पर अमाउंट अगर प्राइस करेंसी है तो क्या होगा, डिवाइड। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज नेचुरल, ठीक है, दिस इज नेचुरल, ठीक है ना।
तो इन दैट केस पॉइंट नंबर 3, conversion bracket not a part of any LOS, कोई भी लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है CAD CHF 13.2050. If you sell 40,000 CAD, how much CHF will you get? बताइए. दो ही आंसर दुनिया में पॉसिबल है, या तो 40,000 इंटू 13.2050 या 40,000 डिवाइड बाय 13.2050. और ये सब बुद्धि मत लगाना, सर इसके पहले डिवाइड कर दिए थे, मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, अभी ऐसे है वैसे है. तुम अपना कॉमन सेंस लगा के बोलो. तो वहां पे लाइव बैच में तो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज है, अलग अलग आंसर सबका आ रहा है. मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? 100% मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सिंपल है कि सर जो अमाउंट दिया हुआ है वो किस करेंसी का है? क्या वो बेस करेंसी का है? यस, वो बेस करेंसी का है. ये तो कनेडियन डॉलर का ही रेट है और अमाउंट भी कनेडियन डॉलर, तो यूनिटरी मेथड तो मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. somebody texts me that सर समझ में नहीं आया, मैं तो 4 एग्जाम्पल करा सकता हूँ. You can't practice 40,000 examples on this. सिंपल चीज है, जो अमाउंट दिया हुआ है क्या वो बेस करेंसी का है, तो यूनिटरी मेथड गेट्स ट्रिगर्ड, यू मल्टीप्लाई. अमाउंट अगर प्राइस करेंसी का है तो डिवाइड. यू ऑल कैन अंडरस्टैंड किसका किसका रॉन्ग आया होगा, जो लोग कॉमनली लाइव बैच में बोलते हैं. कौस्तव स्माइल कर रहे हैं. 40,000 इंटू 13.2050 इक्वल टू व्हाट? 5. लंबा फिगर है ना. 528,200. इतना CHF, इतना CHF. केवल जो अमाउंट दे रहा हूं वो अमाउंट देखो, क्या वो अमाउंट बेस करेंसी का है तो मल्टीप्लाई, नहीं है तो डिवाइड. इससे इजी चीज दुनिया में पैदा नहीं हुआ. नेक्स्ट एग्जांपल, USD JPY 160.20. A US company decides to acquire a Japanese company. Okay, mergers and acquisition. A US company decides to acquire a Japanese company and purchase consideration, PC. Purchase consideration, ये प्राइस करेंसी नहीं लिखा हूँ. Purchase consideration, भैया फुल फॉर्म लिखना. Purchase consideration, this is not price currency. Purchase consideration is decided to be JPY 4,000 billion. JPY 4,000 billion, full stop. How much USD would it cost? How much USD would it cost? तो जो भी राम कहानी स्टोरी लिखा, अल्टीमेटली तो दो ही फिगर्स है, एक है 40,000, एक है 4,000 और एक है 160.2. इन दोनों को या तो इनटू करना है या इन दोनों को डिवाइड करना है. दो ही फिगर्स है स्क्रीन पे, जो भी कहानी बोल रहे. ओके, 4,000 एंड 160.2, तो दो ही फिगर्स है. तो क्या होगा, मल्टीप्लाई के डिवाइड? डिवाइड होगा, बिकॉज सर ये जो अमाउंट है 4,000 ये तो JPY का है और JPY तो यहाँ पे बेस करेंसी है नहीं, तो इसका तो रेट ही नहीं है 160, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, डिवाइड. तो आंसर है 4,000 डिवाइड बाय 160.2
इक्वल टू 24.9687 बिलियन USD. सॉरी, बट यू कुड सी दोनों एग्जाम्पल में मैंने रूल लिखा या नहीं है. मैं तो एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया. आप लोग के तो फेस टू फेस बैच पे तो सबके बैठ गया, मेरे को दिख रहा है, समझ में आ गया तुम लोग को. आई एम श्योर वहां पे ही बैठ गए लाइव बैच में भी. तब भी रूल लिखा दूं, ऑल्दो इसका कोई LOF नहीं है, क्वेश्चन आने वाला नहीं है. कोई बड़े क्वेश्चन में काम आ जाए तो अलग बात है. रूल क्या है? जो अमाउंट दिया हुआ है, जो अमाउंट दिया हुआ है, अगर वो बेस करेंसी का है, जो अमाउंट दिया हुआ है अगर वो बेस करेंसी का है तो मल्टीप्लाई और एल्स डिवाइड. आई विल नॉट इन्वेस्ट टाइम इन दिस टॉपिक. जो अमाउंट दिया हुआ है अगर वो बेस करेंसी का है तो मल्टीप्लाई और एल्स डिवाइड, और एल्स डिवाइड. ठीक है, ओके. पॉइंट नंबर 4. तो लास्ट आधे घंटे से अपने एक्सचेंज रेट का कोटेशन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा अवेयरनेस हो गया है. आई एम श्योर कि हाँ, एक रफ अवेयरनेस अपने को हो गया एक्सचेंज रेट का, और टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस देना पड़ेगा टाइम पे. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ अभी तक टेस्टेबल किया नहीं है कि इस पूरे पोर्शन से कुछ आएगा नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते हो. सो आगे सुनते हैं. तो आई एम डाइवर्टिंग, यू टर्न मार रहा हूँ पूरा. एक स्टॉक का बात कर रहे हैं. एक स्टॉक का दाम अगर 500 से 600 हो गया, 500 से 600, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 20%. एक स्टॉक का दाम 500 से 600 हो गया, इट हैज़ गॉन अप बाई 20%. तो 20% में बोल दिया बिकॉज फिगर्स वेर सो सिंपल. ठीक है, वैसे आप लोग निकालते कैसे हैं? 600 माइनस 500 डिवाइड बाय 500 इंटू 100. ठीक है, जो आप लोग मना करते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई कर रहा है तो 600 माइनस 500 बाई 500, यानी कैलसी को 3 बार टीप रहा है. 600 500 500, तो 500 में टाइम वेस्ट हुआ, 2 बार टीपा. इंस्टेड वी से बाद वाला बाई पहले वाला. इनफैक्ट -1 भी करना नहीं पड़ता है बिकॉज वो फैक्टर दिख जाते हैं. इफ यू डू 600 बाई 500 इट कम्स 1.2. इफ यू डू ऑन द कैलसी 600 बाई 500 इट बिकम्स 1.2. आदमी बुद्धिमान है, समझ गया ना, 1 तो अलग है यार, 20%. आई यू अंडरस्टैंडिंग? इन अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ हाउ डू आई सेव माई टाइम. तो मैंने हमेशा सिखाया है बाद वाला बाई पहले वाला -1, और मैं पर्सनली -1 नहीं करता हूँ. मैं 1 को माइनस अपने मन में ही कर लेता हूँ. ठीक है, 600 बाई 500 -1. इज इट ओके? सॉरी फॉर द टाइम वेस्ट, लेट्स कम टू इट. अगर रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट 87.2 अभी चल रहा है, अच्छा फिगर्स बोल रहा हूँ सो दैट वी कैन टॉक वर्बली. रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट 87.20 चल रहा है. ये किसका एक्सचेंज रेट है? डॉलर का कि रुपया का? डॉलर का. एक डॉलर 87.2 रुपीज है. डॉलर इज द बेस करेंसी. इट इज माई फोरकास्ट. इट इज द फोरकास्ट. या ब्लूमबर्ग में जाकर चेक किए. कंसेंसस फोरकास्ट इज दैट 1 year फ्रॉम नाउ रूपी पर डॉलर शैल बी 88.50. शैल बी 88.50. Today the exchange rate is 87.20. 1 year from now expected spot rate ES1, E expected bracket S1, 1 year बाद 88.50. दोनों फिगर्स ओके. 87.20, 88.50. So please fill in the blanks. Dollar is expected to appreciate by what percent? Kelsey please. Dollar is expected to appreciate by what percent? Dollar is expected to appreciate by what percent? 87.20 से 88.50. 87.20 से 88.50. So 1.4908%. 1.4908%. तो डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट बाय 1.4908%. कैन आई अज्यूम दैट ये सबका आ गया 87.2 से 88.5, 87.2 से 88.5. तो यू ऑल डिड 88.5 बाय 87.2 -1. व्हाट डिड यू डू? 88.5 बाय 87.2 -1. बाद वाला बाय पहले वाला -1. ठीक है, तो 1.49% आया है. 14.9% नहीं आया है. निर्भय मोघे, हो सकता है आपको 1.48 गंदा लग रहा है. नहीं, मैं 14.9 बोलूंगा. नेक्स्ट टाइम आएगा 0.149%. नेक्स्ट टाइम आएगा 0.0149%. तो जस्ट बिकॉज यू लाइक ब्यूटी दैट डज नॉट मीन दैट फिगर्स और एक्सचेंज रेट मार्केट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मेकिंग ब्यूटीफुल फॉर यू. इट इज 1.4908%. इज इट फाइन? ध्यान देना. 87.2 88.5, 87.2 88.5.
अगर ऐसा होगा तो रूपी वुड हैव अप्रिशिएटेड और डिप्रिशिएटेड? डिप्रिशिएटेड। रुपया तो गिर गया। अगर डॉलर 87.2 से 88.5 हो गया तो रुपया तो गिर गया है ना, करेक्ट है? मैथमेटिकली जाए, करना मत। तो रुपया का वैल्यू 1/87.2 था, एम आई करेक्ट? निकालना मत। रुपया का वैल्यू 1/87.2 था और रुपया का वैल्यू 1/88.5 हो गया। ओके, एक बार कैलसी में जाओ और 1/87.20 को STO1 में डालो। 1/87.20 इक्वल टू STO1 और 1/88.5 इक्वल टू STO2 कर दिया आपने। तो आपने इतना गंदा था कि वी डोंट वांट टू स्पीक द फिगर, ठीक है? लेट दे बी ऑन द दिस थिंग ओनली। 1/87.20 STO1 आपने डाल दिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं, और 1/88.50 इक्वल टू STO2 आपने डाल दिया, करेक्ट? तो मैथमेटिकली रुपया एक करेंसी है। रुपया का आपको अभी का रेट पता है, रुपया का आपको एक साल बाद का रेट पता है। तो रुपया का अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, रुपया का अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो फॉर्मूला शुड बी सेम। बाद वाला बाई पहले वाला -1 द होल इनटू 100, बाद वाला बाई पहले वाला इक्वल टू फिर -1 द होल इनटू 100। नेगेटिव आएगा तो डेप्रिसिएशन, पॉजिटिव आएगा तो अप्रिसिएशन। मैथमेटिकली तो फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का है। तो प्लीज डू RCL2 डिवाइड बाय RCL1, RCL2 डिवाइड बाय RCL1 इक्वल टू फिर -1 फिर इक्वल टू फिर इनटू 100 इनटू 100 क्या आया? -1.4689%। -1.4689 को कन्वीनियंस के लिए -1.47 बोल लें, easy to communicate. -1.47% is the percentage change in rupiah. The minus shows it's a depreciation. The minus shows it's a depreciation. So now we get a stucking a point. Why? Because वही exchange rate 87.2 से 88.5. People can see that dollar is appreciating, rupee is depreciating. पर डॉलर का अप्रिसिएशन आया था 1.49%, याद होगा आप लोग को। रुपया का डेप्रिसिएशन आया 1.47%। इज इट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ के कारण ही आया, या डू यू थिंक देयर इज अ मैथ? ये जो डॉलर का अप्रिसिएशन मतलब रुपया का डेप्रिसिएशन, डॉलर बढ़ा रुपया के अगेंस्ट में मतलब रुपया गिरा, ये तो ऑब्वियस ही है, ठीक है? तो डॉलर का अप्रिसिएशन 1.49%, रूपी का डेप्रिसिएशन 1.47%. डू यू थिंक इट्स एन अप्रोक्सीमेशन सर, और डू यू थिंक देयर इज अ मैथ? व्हाट डू यू बिलीव? क्या ये अप्रोक्सीमेशन के कारण हुआ है, इतना सा डिफरेंस है, या देयर इज अ मैथ ओवर हियर? सो फेस टू फेस स्टूडेंट्स आर सेइंग देयर इज अ मैथ इन्वॉल्वड. Okay, there is a math involved, everybody is saying. The math that is involved, we had all done in class 6-7. So let us go back to class 6-7. Mr. A earns 10% more than Mr. B. Mr. A earns 10% more than Mr. B. So Mr. B earns how much percent less than Mr. A? एकदम क्लासिक क्लास 6-7 का क्वेश्चन है. A B से 10% ऊपर कमाता है तो B A से कितना परसेंट नीचे कमाता है? तो परसेंटेज में सिखाया गया था बेस को 100 लेना. तो A B से 10% ऊपर कमाता है तो B 100 कमाता है. B कितना कमाता है? 100. A 110, B earns 100, तो A earns 110. Now if you look at B compared to A becomes the base 110, 100. तो यहाँ पे तो 10/110 आएगा. 10/110 is 9.09%. 9.09%. There is a math involved. So if A earns 10% more than B, B earns 10% less than A. B earns 10% less than A. This math is more pronounced in the stock market, and it is so unfortunate that people do not understand this math. You bought a stock for 25. You bought a stock for 25. It goes to 100. It goes to 100. That means 25 का stock 100 हो गया. 300% return. 4 times हो गया ना. 25 का stock बाई किया 100 हो गया. तो यानी कि 4 गुना हो गया. तो 4 में एक तो था ही 1. तो अल्टीमेटली 75 बढ़ा ना, 75/25. 300% return. Correct बोला? For you to come back to status quo from 100 to 25, will the stock have to lose 300%? 25 से 100 होने के लिए आपको 300% कमाना पड़ा. But for you to come back to 25, वही धरती पे आने के लिए, would you have to lose 300%? No. You have to lose only 75%. 100 से 25, 75 रुपया पर गिरा कहां से? 100. 75/100, 75%. आप समझ रहे हैं? यानी कि क्लाइंबिंग अप द माउंटेन इज सो डिफिकल्ट, क्लाइंबिंग डाउन द माउंटेन इज सो इजी. लुक एट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. 25 से 100 जाने के लिए 300% कमाना पड़ेगा, बट 100 से 25 आने के लिए केवल 75% लूज करना पड़ेगा. तो परसेंटेज में बेस मैटर्स कि कहां से जा रहे हैं. अभी आपने जो किया है
87 बिकॉज मेरे को पढ़ाना तो फॉरेक्स है, आई एम टेकिंग माई टाइम टू कम टू द स्टफ एंड दैट्स द स्पेशलिटी फॉर क्लासेस. वी गो इन टू द लॉजिक पे लॉजिक ऑफ एवरीथिंग, देन वी ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट कि इजीएस्ट तरीका क्या है. तो आपको रुपी का डेप्रिसिएशन निकालना था, एकदम सही निकाला था 1.47% पर. निकाला कैसे? 1/87.2 STO1, 1/88.5 STO2, then you did RCL2 by RCL1 equal to -1 the whole into 100. Remember? यानी बाद वाला बाई पहले वाला -1. अगर अपने कर दे पहले वाला बाई बाद वाला, 87.2 by 88.5, try 87.2 divide by 88.5 equal to the whole thing -1 equal to the whole into 100. Please try 87.2 divide by 88.5 जो आया equal to -1 equal to the whole thing into 100. I hope you all have done it. क्या आया? -1.47% अप्रॉक्स आ गया, -1.47% अप्रॉक्स. So in the multiple choice exam, what would you like to do? Would you like to do the reciprocal of it and feed it in STO1, STO2? That would be really unsmart. कि हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे और उसको डालेंगे STO में, फिर करेंगे बाद वाला भाई पहले वाला. ये तो गलत हो जाएगा ना. हम लोग सीधा कर देंगे पहले वाला भाई बाद वाला. क्या कर देंगे? पहले वाला भाई बाद वाला. कम हो गया पहले वाला भाई बाद वाला, तो दैट केस आ जाएगा. तो कब करना है बाद वाला भाई पहले वाला, कब करना है पहले वाला भाई बाद वाला? मैथ. बेस करेंसी का पूछा है. किसका? बेस करेंसी का. तो उसी का तो भाव है. बेस करेंसी इतना से इतना, उसका अगर पूछता है अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन, इट्स गोइंग टू बी S1/S0 मैथ. बट अगर वो प्राइस करेंसी का पूछा है तो वो तो रेट ही नहीं है प्राइस करेंसी का. तो या तो तुम रेसिप्रोकल करो, उसका रेट निकालो, और या फिर तुम कर दो पहले वाला बाय बाद वाला, पहले वाला बाय बाद वाला. सपोज अपने में से किसी को समझ में तो आ गया क्या करना है, बट वो मैथमेटिकली सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इन दैट केस जस्ट हैव अ लुक. आप लोगों ने किया अभी सर, रुपया का बाद में रेट हो गया 1/88.5, रुपया का पहले रेट था 1/87.2, करेक्ट है? ये तो मैं बाद वाला भाई पहले वाला कर रहा हूँ, ये मानोगे? तो 1/88.5 रुपया का बाद में रेट, रुपया का अभी रेट क्या है? 1/87.2. मैं रुपया के भी लेवल पे जा रहा हूँ. बट ये जो किए आपने, इसका नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज दिस? 87.2 by 88.5. कांट यू सी दैट? अरे ये तो ऊपर चल जाता है ना यार मैथ. आई होप यहां कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं. इफ वी आर डूइंग 1/x upon 1/y, व्हाट इज इट इक्वल टू? y/x. प्लीज समझ गए? तो इसमें कोई तोप नहीं है कि सर ऐसे कैसे कर दिए 87.2 by 88.5. इट इज इनहेरेंट इन द मैथ. इज इट फाइन? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिक्टेट विथ ऑल द लॉजिक. कहां से किए थे याद है? पहले शेयर का बताया, 500 से 600 शेयर चला गया, ठीक है, 20% बढ़ा, तो वहां से बात हो गया सब बाद वाला भाई पहले वाला, ठीक है. फिर अपने रुपी पर डॉलर पे आ गया, फिर देखे नहीं रुपी का डिप्रिसिएशन अलग आ रहा है, फिर मैं मिस्टर ए मिस्टर बी में चला गया, फिर मैं वापस यहाँ आ गया. कांट डिक्टेट सो मच. तो डिक्टेशन केवल एक चीज बताना है, अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ द बेस करेंसी. अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ द बेस करेंसी इज इक्वल टू S1/S0. S1/S0. But appreciation or depreciation of the price currency is equal to what? S0/S1. Appreciation won't decide. वो appreciation बोला तो हम ऐसे करेंगे, depreciation बोला तो ऐसे करेंगे. मैंने नहीं बोला ये बात. मैंने बोला बेस करेंसी का निकाल रहे हैं तो S1/S0, और प्राइस करेंसी का निकाल रहे हैं तो S0/S1. एक तो और ट्राई कर ले, बिकॉज वरना अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में दिक्कत हो जाएगा. सारा एग्जाम्पल वैसा हो गया. तो सपोज बहुत ही बढ़िया होता है, रुपी पर डॉलर 87.2 है ना, 87.2 से मेरा फोरकास्ट है जोर से एफडीआई ये सब आने वाला है कंट्री में, बिकॉज ऑफ विच रुपी विल अप्रिशिएट. व्हाट विल अप्रिशिएट? रुपी. एंड द एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर विल बिकम 85. 87.2 से 85. 87.2 एक्सचेंज रेट है, एक साल बाद 85 हो जाएगा. ये डॉलर का रेट चल रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है. तो डॉलर का डेप्रिसिएशन निकालो. डॉलर का डेप्रिसिएशन, डॉलर का रेट 87.2 है, एक साल बाद 85 हो जाएगा. डॉलर का डेप्रिसिएशन निकालो प्लीज. डॉलर का डेप्रिसिएशन कितना? Costa is saying -2.53%. Costa is saying -2.53%. ओके, -2.53. कुछ भी बुद्धि लगाना नहीं था. 85 डिवाइड बाय 87.2 द होल थिंग -1. क्यों? बिकॉज डॉलर का ही तो बात हो रहा था. डॉलर का भाव दिए, अप्रिसिएशन दिए, डेप्रिसिएशन दी, उसका बुद्धि छोड़ो, वो तो मैथ्स है, ठीक है. तो डॉलर का रेट था, सब डॉलर का ही पूछ रहे हैं. बाद वाला भाई पहले वाला 85 बाय 87.2 द होल थिंग -1 द होल थिंग इनटू 100. Is it fine? 85 by 87.2 the whole thing -1 the whole thing into 100 equal to 2.53% negative. करेक्ट है. अब रूपी का अप्रिसिएशन निकालो. रुपी का अप्रिसिएशन निकालो.
तो रुपये का तो रेट था ही नहीं 85 ये सब, तो इसका मतलब करेंगे अभी का रेट बाय बाद का रेट, अभी का रेट डिवाइड बाय बाद का रेट। अभी का रेट क्या था 87.2, तो 87.2 डिवाइड बाय 85, 87.2 डिवाइड बाय 85, द होल थिंग माइनस 1, द होल इनटू 100, 2.58%, 2.58%, 87.2 by 85, 2.58%, तो 2.58% ज्यादा है। हाथ के सिंबल से अगर दिखाएंगे, हैंड के वेवर से, अप्रिसिएशन को ऐसे दिखाएंगे ना, अप्रिसिएशन, ये तो बोलूंगा क्या, मैं ऐसे बोलूंगा अप्रिसिएशन, नो अप्रिसिएशन। तो इफ यू लुक एट द नेचुरलिटी, लोअर बेस, डेप्रिसिएशन, लुक एट द नेचुरलिटी, हायर बेस, बिकॉज नेचुरल थिंग्स आर द बेस्ट। अप्रिसिएशन यानी लोअर बेस से चेंज हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन हायर बेस से, और बेस तो मैटर करता है परसेंटेज में। हमेशा डेप्रिसिएशन कम आएगा अप्रिसिएशन से, हमेशा डेप्रिसिएशन कम आएगा अप्रिसिएशन से, बिकॉज ऑफ व्हाट, बेस इफेक्ट। तो एक तो बात है सर निकालेंगे कैसे, और दूसरा बात है सर कंक्लूजन क्या है। द अप्रिसिएशन ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अनदर इज नॉट इक्वल टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द अदर करेंसी अगेंस्ट द फॉर्म, इट इज नॉट इक्वल। A earning 10% more than B does not imply B earning 10% less than A. Stop going from 25 to 100, 300% doesn't mean stop coming down from 100 to 25 means 300%. Correct है? Okay? It is not PhD का discussion, just that we were opening out and discussing, because of which the stress was high. It is a very simple चीज. We will going to enjoy अगर ऐसा कोई समा जाए तो, और ये पहला चीज है एग्जाम में पॉसिबल आना, ठीक है, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, और इसमें भी घुमा के देंगे वो लोग स्टफ को, ठीक है। तो कैसे घुमाएंगे, विल कम टू इट। चलो पॉइंट नंबर 4, अप्रिसिएशन ऑब्लिक डेप्रिसिएशन परसेंटेज, अप्रिसिएशन ऑब्लिक डेप्रिसिएशन परसेंटेज। For the base currency, S1 by S0 minus 1 the whole into 100. ओके, बाद वाला बाई पहले वाला, -1 the whole into 100. Second bullet, for the price currency S0 by S1 minus 1 the whole into 100, बिकॉज उसका तो रेट ही नहीं है प्राइस करेंसी का। तो या तो आपको रेसिप्रोकल में जाना पड़ेगा, अगर कोई आदमी डिसाइड करते हैं हम रेसिप्रोकल में जाएंगे, तो हमेशा फर्स्ट वाला फॉर्मूला, कभी सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं रहेगा, ठीक है। ड्यू टू बेस इफेक्ट, ड्यू टू बेस इफेक्ट, ड्यू टू बेस इफेक्ट dash, next line, percentage appreciation greater than percentage depreciation, percentage appreciation greater than percentage depreciation. Example, spot rate today, expected spot rate 1 year from now. यहाँ पे करेंसी पेयर और एक कॉलम में स्किप हो गया, तो फर्स्ट कॉलम में करेंसी पेयर, सेकेंड कॉलम में स्पॉट रेट टुडे, थर्ड कॉलम में स्पॉट रेट अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो करेंसी पेयर है EUR GBP, EUR GBP 0.7390, 0.7220. Second currency pair is AUD USD 0.6850, 0.6850,
0.6990. नीचे लिखो स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो मैं स्टेटमेंट बोलते जा रहा हूं, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट बुलेट, AUD is expected to depreciate against USD. AUD is expected to, Australian dollar is expected to depreciate against US dollar. कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। AUD is expected to depreciate against US dollar, ये ट्रू है कि फॉल्स है? कृतिक संथालिया इज सेइंग नो, यानी फॉल्स है। इशिता संदूजा इज सेइंग ट्रू है। कौशिक शाह इज सेइंग फॉल्स है। तुषार इज सेइंग फॉल्स है। प्रियांगी इज सेइंग फॉल्स है। आरिफ इज सेइंग ट्रू है। सर्वेश इज सेइंग फॉल्स है। जीआई सेइंग फॉल्स है। दर्जी सेइंग फॉल्स है। वैष्णवी सेइंग फॉल्स है। निर्मय फॉल्स। गुंजन फॉल्स। निर्मय फॉल्स। हिरन फॉल्स। रोहित फॉल्स। वैष्णवी फॉल्स। आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, ठीक है। एकदम क्लियर कट ट्रू स्टेटमेंट है। नहीं सॉरी, क्या लैंग्वेज था मेरा? AUD इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट USD। तो ये तो AUD का ही रेट है, ये तो AUD का रेट है। एंड AUD इज एक्सपेक्टेड टू व्हाट? अप्रिशिएट। द आंसर इज व्हाट? फॉल्स। सॉरी, मैं गलती कर दिया ज्यादा सोच के। एक्चुअली कौशिक शाह का देख के आई कुड नॉट रिमेंबर माय सेल्फ। तो द आंसर इज फॉल्स। लिख दो फॉल्स, क्योंकि AUD का रेट है तो 0.6850 से 0.6990, तो AUD अप्रिशिएट कर रहा है। ये AUD का रेट है और AUD का रेट अभी 0.6850 है और बाद में 0.6990 है, तो AUD इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट। वो हंस रहा है कौशिक शाह। एक्चुअली इसका आते ही लगता है वो तो रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट बुलेट। Euro is expected to depreciate against GBP. Euro is expected to depreciate against GBP. Euro is expected to depreciate against GBP. ठीक है, ये यूरो का ही रेट है, तो यूरो एक्चुअली गिर रहा है, इसका मतलब डेप्रिशिएट। व्हाट इज इट? ट्रू। टेबल कंटिन्यूड है और एक रेट टेबल में डाल रहा हूं। USD JPY 166.20, 170.50। USD JPY 166.20, 170.50। और थर्ड बुलेट, JPY is expected to depreciate against USD. JPY is expected to depreciate against USD. JPY is expected to depreciate against USD. Yes, please. JPY is expected to depreciate against USD. तो लाइव बैच पे सबका करेक्ट है, ब्यूटीफुल। वहाँ पे टेलीविजन पे जो मैसेज आ रहे हैं, JPY is expected to depreciate against USD। अब मैं सबसे पहले कौस्तव से पूछ रहा हूँ, द आंसर इज ट्रू, ठीक है। बिकॉज ये रेट तो JPY का है नहीं, ये रेट तो किसका है? USD का, और USD अप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब JPY क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट। द आंसर वाज ट्रू, ठीक है। तो यू ऑल गॉट द स्टफ, वेरी गुड। एक और चौथा बुलेट पूछूंगा, पर उसके लिए आई हैव टू थिंक, ठीक है। तो आई एम बाइंग सम टाइम, 30 सेकेंड 60 सेकेंड, देन आई विल आस्क, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। चलो, फोर्थ बुलेट। JPY is expected to depreciate against AUD.
JPY is expected to depreciate against AUD. AUD बोला मैंने, यस AUD. बहुत ही अच्छे से बुद्धि लगाओगे तो यू कैन क्रैक इट, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए. JPY is expected to depreciate against ऑस्ट्रेलियन डॉलर. देखो दोनों यूएस डॉलर के साथ दिया हुआ है. मैंने तो वैसे सोचो ना, अगर मैंने वैसा हो गया, इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया, सिट्रस पेरिबस, इंडिया एक तरह से न्यूजीलैंड को हरा दिया इन द हायरार्की. इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा दिया, तो एक तरह से इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दिया. मैं उस टोन में बोल रहा हूं. इफ यू अप्लाई दैट टोन यू विल बी एबल टू थिंक. मेरे एग्जांपल में ऑस्ट्रेलिया कॉमन था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा दिया. बाय दैट लॉजिक थिंक. जो सोचेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा मन में, खासकर मेरे बोले बिना सोचेंगे तो यू विल रियली लाइक द स्टफ गोइंग इनटू योर माइंड. The answer is true and it doesn't require any calculation. जो ऊपर का रेट था 0.6850, 0.6990 वो AUD का था, तो AUD USD से अप्रिशिएट हो रहा है, तो AUD USD को हरा रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया US को हरा रहा है. और यहाँ पे जो JPY है वो तो USD से हार जा रहा है. जापान तो US से हार गया, तो ऑस्ट्रेलिया तो US से जीत गया था, और जापान अगर US से हार गया तो जापान तो ऑस्ट्रेलिया से हारेगा ही. इट्स अ मेंटल थिंग. ठीक है सर, क्या ये टेस्टेबल है कि ये जानबूझ के आप मजा लेने के लिए बोल रहे हैं? यही टेस्टेबल है. जो बोला था ना बीच में, द वे दे विल आस्क द क्वेश्चन, दे विल आस्क द क्वेश्चन दिस वे. ये जो मैं बोला हूं, दिस वे दे विल आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज दे विल नॉट डिग्रेड देमसेल्व्स बाय आस्किंग द सुबह का बुलेट वाला क्वेश्चन. दे विल आस्क द क्वेश्चन दिस वे. ठीक है, इसका लॉजिक लिख लो वहां पे नीचे. ये ट्रू है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो, तो लास्ट वाला बुलेट है. लॉजिक क्या हो गया? USD is common. USD is common in the second and third rate. USD is common in the second and third rate. USD is common in the second and third rate. USD is common in the second and third rate. Full stop. फिर in the second rate, AUD is expected to appreciate against USD. In the second rate, AUD is expected to appreciate against USD. तो ब्रैकेट में AUD बाप USD बेटा, AUD बाप कॉमा USD बेटा. खराब लगता है लिखाना, बट अल्टीमेटली यही हेल्प करता है. तो वी हैव टू यूज द इंडियनाइजेशन टू आवर एडवांटेज. AUD बाप कॉमा USD बेटा, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप. In the third rate, JPY is expected to depreciate against USD. In the third rate, JPY is expected to depreciate against USD. In the third rate, JPY is expected to depreciate against USD. Bracket. USD बेटा तो JPY पोता, पोता ही तो हो गया. USD बेटा तो JPY पोता. Okay, sorry for the informality, but if it helps, because hierarchy दिखाने के लिए I know I have to communicate something जिससे कि बाकी लोग को समझ में आए. ठीक है, बट अगर सर फाइट होता तो ऐसा होता कि मैंने नीचे वाला रेट में ना JPY USD को हरा रहा है, तब तो कंफ्यूजन. बिकॉज AUD भी USD को हरा दिया और JPY भी USD को हरा दिया, मतलब इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तब तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी कि तब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा. वी कुड डू द कैलकुलेशन. ठीक है, लेट मी आस्क यू. इनफैक्ट दैट इज द फर्स्ट LOS ऑफ दिस चैप्टर. मैं अभी तक फर्स्ट LOS से पहुंचा नहीं हूँ, और मैंने बोला ये टेस्टेबल है क्योंकि जो प्रीवियस चैप्टर उसका नाम था कैपिटल फ्लोज एंड एफएक्स मार्केट. याद है मैंने जो लिखाया आप लोग को? प्रीवियस चैप्टर का नाम है कैपिटल फ्लोज एंड एफएक्स मार्केट. उसमें जो एफएक्स मार्केट वाले पोर्शन है उसमें एक्सचेंज रेट समझाया हुआ है. इस चैप्टर में एक्सचेंज रेट नहीं समझाया हुआ है. ये चैप्टर प्रिज्यूम्स दैट वो पता है. तो मैं एक तरह से उस चैप्टर का पोर्शन बता रहा था और उस चैप्टर में फिर से बताया हुआ है, बिकॉज 2 बार बताया भी कोई हर्ज नहीं है. इट इज गुड ओनली. लेवल 3 तक लोग रोते रहते हैं बिकॉज अल्टीमेटली फंड्स इन्वेस्ट हो रहा है दायां बायां बायां दायां, और पूरा परेशान है, बाप रे बाप, करेंसी संभाल ही नहीं पा रहा है. बच्चा का यही हालत है लेवल 3 में.
दे आर नॉट एबल टू क्लियर लेवल 3 बिकॉज यही चीज क्लियर नहीं है। समझ गया? लेवल 3 का बेस इज लेवल 1। पीपल नॉट क्लियरिंग लेवल 3 अगेन एंड अगेन इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ लेवल 1 ही क्लियर नहीं है। स्क्वाइजर ट्वाइजर करो तो वही होगा उसके बेसिस पे कि आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर लिए, यू आर कॉम्पिटेटिव, यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम एंड देन यू विल सफर लेटर ऑन। लाइफ में भी वैसे भी लाइन से होता है। करेंसी का सम आती है लेवल 3 का चेहरा देखने का होता है लोग का कि क्या सिट्टी पिट्टी पूरा घूम हो जा रहा है। ठीक है, एनीवेज मैं कुछ बोल रहा था आप लोग से। अगर a बाई बी है मैथ्स में, दिख रहा है ना स्क्रीन, और b बाई सी है, मैथ्स बोल रहे सिंपल मैथ्स, a बाई बी और b बाई सी है, तो क्या कट सकता है? b कट सकता है। क्या करे काटने के लिए? मल्टीप्लाई। अरे मल्टीप्लाई तो करेंगे। इफ आई डू a डिवाइड बाई b इंटू b डिवाइड बाई c, तो b कट क्या आएगा? a डिवाइड बाई c। आई थिंक दिस इज नॉन टॉटेटिव, ये कोई टीचिंग का बात नहीं है। बाय दैट लॉजिक अगर अपने को रेट दिया हुआ था AUD USD, रेट था याद है? और मैंने ऊपर में बोला था आप लोग को डिक्टेट करने में कि रेट तो ये लोग ऐसे देते हैं, पर मैथमेटिकली मैथ्स कोई कर रहे हैं ना, वो रेट को लिखना चाहेगा किसका दाम? पर, PER पर। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग, नाउ यू विल रियलाइज कि व्हाई वाज सर सेइंग दैट ऑब्लिक वाला क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ऑब्लिक में लिखेंगे तो क्या लिखूं? USD बाय AUD, करेक्ट है ये? USD बाय AUD। नेक्स्ट वाला रेट था अपना USD JPY। क्या रेट था? USD JPY। इसको ऑब्लिक में क्या लिखो प्लीज? JPY बाय USD, करेक्ट है? सही है? क्या कॉमन कटने का बोल रहा है? मेरे को काटना कौन बोल रहा है? USD। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो USD कट क्या आएगा? JPY USD, सॉरी JPY AUD। ये दिख रहा है? JPY AUD रेट आ जाएगा। तो अगर हम लोग का जो स्पॉट रेट तो मल्टीप्लाई से आ रहा है, क्रॉस रेट, इसको बोलते हैं क्रॉस रेट। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस रेट। तो तुम लोग कैलसीमीटर का देखो, 0.6850 इंटू 166.20, ये जो दोनों रेट है ना, 0.6850 इंटू 166.20 इज वॉट? 0.6850 इंटू 166.20 इज वॉट? 113 पॉइंट समथिंग। STO1 और नेक्स्ट वाला कर दो 0.6990 इंटू 170.50, 0.6990 इंटू 170.50, 119.17 STO2। ये किसका रेट आया है? ये रेट आया है अपना AUD का। देख लो ये आया ना AUD का। तो तुम्हारे RCL1 में जो रेट है, RCL2 में कौन सा रेट ज्यादा है? RCL2। तो सर AUD इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट, ये तो मैथमेटिकली आ गया। AUD का स्पॉट रेट कम है, एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा है, तो AUD इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट अगेंस्ट जापानीज येन, मतलब जापानीज येन इज एक्सपेक्टेड टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट व्हाट? AUD। एंड दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है ना? बट देयर वाज नो नीड टू सॉल्व एंड आंसर द क्वेश्चन, देयर वाज नो नीड, इट कुड हैव बीन आंसर्ड बाय कॉमन सेंस। बट हैड देयर बीन अ फाइट, यहाँ पे रेट अगर 166 के बाद अगर मैं दे देता 163.50, तब सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों USD को हरा दिए, AUD भी USD को हरा दिया है और JPY भी USD को हरा दिया है, तब तो AUD और JPY का मैच होना पड़ेगा ना। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तब देयर इज नो वे बाय विच लॉजिक से बता देंगे। ठीक है? तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट LOS है दैट इज दिस क्रॉस रेट। ये इस चैप्टर का फर्स्ट LOS ही क्रॉस रेट है एंड इट इज सो इजी। कॉमन करेंसी काटना है, कॉमन करेंसी काटना है। विल यू हेल्प मी प्लीज? अगर अपने पास है A बाई बी एंड अपने पास है C बाई बी, व्हाट इज द कॉमन करेंसी? B। तो B को काटना है, दिक्कत है। ऑफ कोर्स डिवाइड कर सकते हैं, पर डिवाइड में एक दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को। क्या दिक्कत होता है डिवाइड में? सोचता है ऊपर किसको रखे, नीचे किसको रखे। ये दिक्कत होता है, मेरा देखा हुआ है इन माई, मैं तो 30 साल से सह रहा हूं ना। ठीक है? क्योंकि ऊपर किसको रखे, नीचे किसको रखे। अभी तुम लोग को इजी लग रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल A बाई सी निकालना है, तो किसको ऊपर रखे? A बाई बी। A बाई बी ऊपर रहेगा, C बाई बी नीचे होगा। अब दिक्कत क्या है? नेक्स्ट टाइम रेट आएगा B बाई ए एंड C बाई ए, क्या कटेगा? A कटेगा। ठीक है? मेरे को निकालना है, सॉरी, रेट है A बाई बी एंड है A बाई सी। हाँ, क्या कटेगा? A कटेगा। मेरे को निकालना है B बाई सी, ऊपर किसको रखे? A बाई सी ऊपर होगा। पर थोड़ा सा फालतू में स्ट्रेस आ रहा है ना, डिवाइड में स्ट्रेस आ जा रहा है और हड़बड़ी में गलती हो सकता है, तो क्यों अपने वो सब चक्कर में पड़े। तो अपने क्या करेंगे, इफ द रेट इज दिस A बाई बी एंड C बाई बी और B कट नहीं पा रहा है, तो एक का रेसिप्रोकल निकाल लो ना। एक का क्या निकालो? रेसिप्रोकल। मतलब ये जो रेट है, या तो इसमें B को ऊपर ले जाओ या इसमें B को ऊपर ले जाओ, तो आता ही है तुमको रेसिप्रोकल निकालना।
रेसिप्रोकल किसका निकालना है अगर ए बाई सी निकालना है तो? कॉमन सेंस की बात करो, अगर ए बाई सी निकालना है तो किसका रेसिप्रोकल निकालो? ए बाई बी का निकालो कि सी बाई बी का? सी बाई बी का सर, बिकॉज सी नीचे चाहिए, सी फालतू में ऊपर क्या कर रहा है? तो हमने सी बाई बी का रेसिप्रोकल निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गया? यानी हम लोग मल्टीप्लाई से ही निकालेंगे क्रॉस रेट। किससे निकालेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं होता रहा तो एक तो रेसिप्रोकल निकाल देंगे, ठीक है? तो हम लोग एक तो रेसिप्रोकल निकाले, क्रॉस रेट निकाल देंगे। तो हमने ऑल्दो रिटन वे में क्रॉस रेट नहीं किया है, बट वी आर लीविंग द क्लास विद द फीलिंग दैट क्रॉस रेट आ तो गया है, क्रॉस रेट आ तो गया है। एंड यू वुड डू इट वेरी वेल इफ यू फोकस ऑन द लास्ट एग्जाम्पल। वो AUD JPY पे फोकस करेंगे वगैरह तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना?